بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، قبل اس کے اپنی معروضات آپ کے گزار کروں، ایک ضروری بات جو آپ کو بخوبی اس کا علم ہے اور آپ ساتھ آگاہ ہیں کہ پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہے، لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے اور لوگوں کا جانی مالی جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہوا۔ تو اس لحاظ سے جو یہ ہمارا ادارہ ہے فاطمیہ فاؤنڈیشن، انہوں نے سیلاب زدگان کے حوالے سے فنڈ جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش شروع کی ہے۔ تو آپ سب سے التماس ہے کہ آپ سب بھرپور طریقے سے اس میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ثواب دارین حاصل کیا جا سکے اور جو بحالی ہے سیلاب زدگان کی ان کے لیے جو ہے کچھ اہتمام کیا جا سکے۔ تو جس بندے کو جتنی توفیق ہو اپنی استطاعت اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ اسے ضرور حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو فاطمیہ کے عہدیداران موجود ہیں، آپ ان کو جو بھی خدمت جو ہے وہ دینا چاہیں وہ آپ ضرور انہیں دیں تاکہ جو مظلوم لوگ بے گھر ہوئے ہیں، جن کا جانی مالی نقصان ہوا ہے، وہ ان کا پورا تو نہیں ہو سکتا لیکن جتنی ہمیں اللہ توفیق دے ہمیں اپنے تئیں ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، آج مجلس کا عنوان جو ہے وہ آپ سب کے اذہان عالیہ میں موجود ہے کہ آج کی جو مجلس ہے وہ مجلس شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تو انہی کے حوالے سے ایک دو ان کی سیرت کی باتیں آپ کی گوشت گزار کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی جو آیہ مجیدہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، ہم سب کو یاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ قابل توجہ بات اس آیت میں یہ ہے کہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو اب تم تقوی بھی اختیار کرو۔ یعنی صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ متقی ہونا بھی ضروری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نے آج آپ کو کہا نہیں کہ آپ اکٹھے ہو جائیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ جہاں جہاں پہ ہیں وہاں پہ میرے ساتھ بولیں نا، تھوڑا تھوڑا کوشش جو ہے وہ آپ کیجئے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کر۔
यानी ईमान भी होना चाहिए और ईमान अल्लाह के नज़दीक वो काबिल कबूल है जिसके साथ तकवा भी मौजूद हो। और हम ईमान ले आए और हमने तकवा भी इख्तियार किया, तो क्या हमने इस आयत पे अमल कर लिया? नहीं, बल्कि आयत आगे बढ़ती है और कहती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ साहिबाने ईमान तकवा इख्तियार करो। पहले ईमान लाओ फिर तकवा इख्तियार करो। तो क्या आयत के मिसदाक हो गए? कहा नहीं, तकवा भी होना चाहिए, ईमान भी होना चाहिए और इसके बाद सच्चू का दामन भी तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। अगर तुम्हारे हाथ में सच्चू का दामन नहीं है तो फिर भी पूरी तरह से आयत पे अमल नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि बंदा साहिब ईमान हो तो फिर उसे मुत्तकी भी होना चाहिए। जब वो मुत्तकी और साहिब ईमान हो तो फिर उसे सच्चू के साथ भी होना चाहिए। यानी ये तीनों चीजें आपस में लाज़िम मलजूम है। यानी ईमान हो, फिर तकवा हो, फिर हूं हम सच्चों के साथ। और मेरे अजीजों, जब हम सच्चों की तलाश शुरू करते हैं तो क्योंकि मुझे आपकी मौजू की मुनासिबत से कुछ सफर तय करना है तो मैं जल्दी जल्दी उस जगह पे आपको लेके जाऊं। तो जब हम सच्चों को तलाश करते हैं तो हमारी नजर में सच्चा और है और कुरान की नजर में सच्चा और है। यानी हम सादिक किसी और को कहते हैं और कुरान सादिक किसी और को कहता है। या तो वजह नहीं फरमा रहे मेरे अजीजों, दुनिया जिसे सादिक कहे वो झूठा भी हो सकता है, लेकिन कुरान जिसे सादिक कहे वो मां की गोद से लेकर कब्र तक झूठ बोलता ही नहीं। यानी उसकी तरफ झूठ की निस्बत देना भी कुफर होता है। उसकी तरफ झूठ की निस्बत भी नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि एक महफिल में एक मौला का मानने वाला था जिसे मोमिन ताक कहते हैं, वो बैठा हुआ था। तो कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और कहा कि कुछ सिफात जो हैं कुछ लोगों में ऐसी हैं जो किसी और में पाई ही नहीं जाती। तवज्जो है सब साहिबान की, जो किसी और में पाई नहीं जाती। ये फलां सिफ्त जो है वो फलां बंदे में है, किसी और में मौजूद है ही नहीं। उसने कहा चलो फैसला तो कर लेते हैं। तो पहले बताओ कि वो कौन सी सिफ्त है जो सिर्फ उसी एक बंदे में है और किसी में मौजूद नहीं। मौला का मानने वाला था, पढ़ा लिखा था। कहता है कि जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ दुनिया में वो सदीक है और कोई सदीक नहीं। ये जो मोमिन ताक के मुकाबले में थे उन्होंने कहा कि फुला जो है वो सदीक है। तो उसने कहा चलो फैसला भी तुम पे, मैं नहीं करता। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि सदीक वो होता है जिसे लोग सदीक कहें या सदीक वो होता है जिसे अल्लाह सदीक कहे। जिसे तुम सदीक कह रहे हो वो दुनिया का सदीक है और जिसको मैं मानने वाला हूं वो अल्लाह का सदीक है। तो मेरे अजीजों, कहां हो जाओ सदीकों के साथ, सच्चों के साथ। और मेरे अजीजों, कुरान की नजर में सादिक वो होता है जो जिंदगी में कभी भी झूठ ना बोले। फिर तवज्जो फरमाइएगा, जिसकी तरफ झूठ की निस्बत देना भी कुफर हो। तो मेरे अजीजों, मेरे कहने का मकसद ये है जो कायनात में सादिक मौजूद हो,
पड़े मोहम्मद वाले। कायनात में सबसे बड़े सदीक का नाम है मुस्तफा। तो जो भी मुस्तफा के मुकाबले पे आएगा वो झूठा होगा, क्योंकि मुस्तफा जैसा सच्चा कायनात में मौजूद है ही नहीं। अरे मुस्तफा की तो अजमत ये है, उसे सिर्फ हम नहीं बल्कि काफरों ने भी कहा कि तू सादिक भी है, अमीन भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी मुस्तफा के मुकाबले पे आए, रजी अल्लाह होना तो दूर की बात, वो झूठा होता है। वो क्या होता है, झूठा होता है। तो मेरे अजीजों, बाद मुस्तफा कायनात में सबसे बड़े सदीक का नाम अली है। तो जो भी अली जैसे सादिक के मुकाबले पे आएगा, नहीं तो मतलब फरमाई, मैं नाम नहीं ले रहा, जो भी हो, जिस सिंफ से भी हो, जिस जिन्स से भी हो, जब अली के मुकाबले पे आएगा तो वो झूठा होगा। तो वजह फरमा रहे हैं, बाद अली कायनात में सबसे बड़े सादिक का नाम है इमाम हसन। तो जो भी इमाम हसन के मुकाबले पे आएगा, नहीं तो वजह फरमाइए आपने, बस मुझे ऐसे ही गुजरना है। और बाद इमाम हसन कायनात के सबसे बड़े सादिक का नाम है हुसैन। और जो भी हुसैन के मुकाबले पे आए वो झूठा है। जो भी हसन के मुकाबले पे आए, चाहे जिस लिबास में भी आए, जिस अंदाज से भी आए, वो झूठा है, क्योंकि कायनात में ये सच्चे हैं। और फिर मेरे अजीजों, बाद हुसैन कायनात में सबसे बड़े सादिक का नाम है ज़ैनुल आबिदीन। तो जो भी इमाम के मुकाबले पे आए वो झूठा होगा, क्योंकि कायनात में इन जैसा सच्चा है ही कोई नहीं। इन जैसा सच्चा कायनात में मौजूद है ही कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि इनके सच्चा होने पर दलील आयत मुबाहला है। सच्चा होने पे दलील आयत मुबाहला है। और मेरे अजीजों, जिस इमाम की आज हम निस्बत से यहां पे हाजिर हैं, क्या अजमत है इस इमाम की। बाकी आपका सुना हुआ, जनाब ईसा के पास एक बंदा आया, उस वक्त के बादशाह ने ऐलान किया कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा जो हक महर में ये फुला कीमती मोती लाएगा, हीरे जवाहरात लाएगा। एक बंदा गरीब चला गया जनाब ईसा के पास, आके कहता है मेरा दिल है शादी हो जाए बादशाह की लड़की से। तो कहा मसला क्या है? कहते हैं मसला ये है कि वो कहता है कि ये कीमती हीरे जवाहरात चाहिए। अच्छा, तो फिर कहता है मेरे पास है नहीं। मौला ने, इमाम ने कहा, जनाब ईसा ने कहा अच्छा। जनाब ईसा ने कुछ कंकर उठाए, कुछ पत्थर उठाए, उसके दामन में फेंके। उठाए पत्थर थे, जब दामन में गए तो हीरू में बदल गए। कहा जा ले जा, ले गया जनाब ईसा के पास। जब ले के आया तो
बादशाह ने कहा, बंदा तो काफी मालदार लगता है, कहता है इतने और चाहिए, फिर शादी करूंगा। फिर वो पलटा जनाब ईसा के पास, आके कहता है, या नबी अल्लाह, कहता है और चाहिए। जनाब ईसा ने फिर कंगे उठाए, उसके दामन में फेंके, फिर हीरे लेके गया। जब लेके गया ना 2-3 दफा, तो शादी हो गई। जब शादी हो गई, बादशाह दुनिया से चला गया, वो बादशाह बन गया। जब बादशाह बन गया वही लड़का, तो कुछ मुद्दत के बाद उसे ख्याल आया कि मुझे इस जगह पे जो पहुंचाने वाला है, मैं उससे तो मिलूं। वो कहां है? ढूंढता हुआ आया जनाब ईसा के पास, आगे कहता है, मुझे जो मनसब मिला है वो आपकी वजह से मिला है, आइए और संभालिए। जनाब ईसा कहते हैं नहीं। फिर कहता है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, तवज्जो फरमाइएगा जिन्होंने लुत्फ लेना, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आपने मुझे हीरे मोती दिए लेकिन खुद आप फकीराना जिंदगी गुजारते हैं। मुझे नवाज दिया लेकिन आपके पास इतने ठाठ बाट नहीं, जबकि आपकी कुदरत में है कि आप किसी को देते हैं तो खुद भी तो ले सकते हैं। तो जो रखना, लुत्फ लेना। जनाब ईसा उसकी तरफ देख के कहते हैं, सुन, हम दुनिया कमाने नहीं आए बल्कि उसे राजी करने आए हैं। तो हम हर उस हाल में घुस गए जिसमें अल्लाह चाहता है। तो नहीं फरमाई आपने। अब जो मैं कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, जनाब ईसा ने पत्थर उठा के दामन में फेंके। पत्थर थे तो पत्थरों से कीमती पत्थर बने, जिन्स नहीं बदली। वजह नहीं फरमा रहे आप, यानी कामदार पत्थर थे, अच्छी नस्ल के पत्थर बन गए। थे पहले भी पत्थर, रहे फिर भी पत्थर, जिन्स नहीं बदली। भाई इस तरह समझो, पहले सड़कों पर डालने वाले थे, फिर पहनने वाले बन गए। तो नहीं फरमाई, लेकिन जिन्स नहीं बदली। तवज्जो होगी तो मैं जुमला कहूंगा, देखोगे मेरी तरफ। जनाब ईसा ने कम तर पत्थरों से अच्छे पत्थर बना दिए, जिन्स नहीं बदली। ये फर्क है चौथे इमाम में और जनाब ईसा में। जनाब ईसा ने कम तर पत्थरों से अच्छे पत्थर बना दिए, जिन्स नहीं बदली। लेकिन इधर मेरे मौला ने अपना तसव्वुर बदला, पानी से हीरे बना दिए। यानी मेरा मौला फख्रे ईसा है, और फख्रे ईसा किस तरह ना हो। मासूम क्या कहते हैं कि मैशर वाले दिन मुनादी युनादिन आइना ज़ैनुल आबिदीन। मैशर वाले दिन एक मुनादी निदा देगा, कहां है ज़ैनुल आबिदीन। और मेरे मासूम क्या फरमाते हैं, सफू को चीरता हुआ मेरा बेटा सज्जाद आगे बढ़ेगा। नहीं, आपने लुत्फ नहीं लिया, आपका गौर नहीं। सदा आएगी किस जगह पे? अभी मैंने बताया मैशर में।
अच्छा मैशर में सिर्फ हम होंगे? नहीं, कौन कौन होगा? हजरत आदम से लेकर क़यामत तक हर फर्द मौजूद होगा। तो क्या क्या होता होगा उधर? आदम से लेके हमारे नबी तक अंबिया भी मौजूद होंगे। बस मुझे तो लफ्ज कहने हैं, 1,24,000 अंबिया भी मौजूद होंगे। अच्छा और कौन? उनके वसी भी मौजूद होंगे। और कौन? हमारे बाकी 13 मासूमीन भी मौजूद होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 1,24,000 अंबिया और हमारे मासूमीन भी मौजूद होंगे। और निदा देने वाला, देखोगे मेरी तरफ, निदा देने वाला कहां पे निदा देगा? मैशर में। इसका मतलब क्या हुआ? मैशर में निदा नहीं होगी, बल्कि वो निदा एक चैलेंज होगी कि जो भी ज़ैनुल आबिदीन है, कैसे पढ़ूं मैं? कोई है तो आओ, कोई है तो निकलो। 1,24,000 अंबिया मौजूद, मासूमीन मौजूद, और कहा कोई है तो आओ, लेकिन कोई नहीं निकलेगा, सिर्फ मेरा चौथा इमाम निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी इबादत 1,24,000 अंबिया से भी वजनी हो, उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर तवज्जो फरमाइएगा। मौला से कहा, बोला इबादत कम कीजिए, अब कम करें इबादत, अपना ख्याल रखें। इमाम मोहम्मद बाकर ने कहा अपने बाप से, बाबा इबादत कम करें, आप इबादत बहुत ज्यादा करते हैं। कहा अच्छा, वो जरा सहीफा अली लेके आओ। सहीफा मंगवाया, कहा बेटा पढ़ो। जब पढ़ा तो कहा बेटा बाकर, देख रहे हो मेरी इबादत मेरे जद के मुकाबले में है ही कुछ नहीं। मेरी इबादत अली के मुकाबले में है ही कुछ नहीं। पता नहीं आप लुत्फ नहीं लेते कि आपका ध्यान नहीं होता। मेरी इबादत अली के मुकाबले में है ही कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि जिस अली की एक ज़रब से किलान से अफजल हो, उसकी बाकी बातों का हिसाब कौन करेगा? उसकी नमाज का अंदाजा कौन लगाएगा? उसके रोजे का अंदाजा कौन लगाएगा? नहीं, आप तो बच्चों नहीं फरमा रहे। कहा बेटा मेरी इबादत तो अली के मुकाबले में अशरे अशीर भी नहीं, एक ज़रब सकलैन की इबादतों से अफजल है। और जब अली मुस्तहब ज़कात देने पे आए तो इतनी ज़कात देता है जितनी सलेमान की हुकूमत हो। वाजिब ज़कात कितनी होगी? तवज्जो फरमा रहे हैं? ये क्या है? ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुजारों की जीनत। और फिर का क्या कहा? सैयदुस साजिदीन, सजदा करने वालों का सरदार। इसका मतलब क्या हुआ? इबादत का ज़ैन भी मेरा चौथा इमाम है और सजदा गुजारों का सरदार भी मेरा चौथा इमाम है। और भाई आप क्या कहती हैं? मेरे मौला का एक खजूर का बाग था, जितने उसके दरख्त थे, मौला हर दरख्त के नीचे
दो रकत नमाज पढ़ते थे। प्रभात उठाइए, पढ़िए, हर नेमत के मिलने पे मौला शुक्र अदा करता था और नमाज शुक्राना पढ़ता था मेरा मौला। और एक दफा तकवे की क्या मेराज है मेरे मौला की, हज पे जा रहे हैं, बियाबान में, सहरा में, एक बंदे ने देखा, भी बच्चा है, छोटा है, कहां जा रहे हो? कहा हज पे। कहा अच्छा, हज पे जा रहे हो तो तुम्हारा ज़ादे राह क्या है? नहीं तो वजह फरमाई आपने। पूछने वाले ने मेरे चौथे इमाम से पूछा, बताओ हज पे जा रहे हो तो तुम्हारा ज़ादे राह क्या है? मेरे मौला देख के कहते हैं, मैं सज्जाद का ज़ादे राह मेरा तकवा है। इसका मतलब क्या हुआ? जब तकवा खुदा पे करके घर से निकलो तो फिर मुश्किल सफर भी आसान लगता है। लेकिन पहली शर्त क्या है? तकवा होना चाहिए। देख के कहता है, तुम्हारे पास कुछ खाने पीने की चीजें मौजूद नहीं? बड़ा पुरलुत्फ जवाब दिया मेरे मौला ने, और जिन्होंने समझ लिया इंशाल्लाह उनको लुत्फ भी आएगा। कहता आपके पास खाने पीने का कुछ नहीं? मौला उसकी तरफ देख के कहता गौर कर, जिसके पास मैं जा रहा हूं वो मेजबान है, मैं उसका मेहमान हूं, खाने की जिम्मेदारी उसकी है। मैं अल्लाह के लिए जा रहा हूं, अल्लाह के घर जा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? जब अल्लाह के लिए करोगे तो फिर लोगों से नहीं मांगना पड़ेगा। लोगों से तब मांगना पड़ता है जब अल्लाह के लिए नहीं किया जाता। तो वजह फरमाई। और जब हज के मौके पे मेरे मौला हज पे गए तो बादशाह वक्त भी मौजूद था। उसने बड़ी कोशिश की कि मैं हजर अस्वद का बोसा दे दूं। बादशाह था, छोटी थी, अफराद मौजूद थे। बड़ी कोशिश की कि मैं खाना काबा को बोसा दे दूं, लेकिन रश इतना था करीब नहीं जा पाया। थक हार के एक जगह पे पीछे हटा, खड़ा हो गया, रश काम होता है तो मैं जाता हूं। जब पीछे हटा तो इसने क्या देखा कि एक बंदा है, जब वो हजरे अस्वद का बोसा देने के लिए बड़ा है तो मजमा इस तरह फटा है जिस तरह मूसा के लिए दरिया नील फटा था। बंधु ने रस्ता दिया, मेरे माम ने जाके उसे बोसा दिया। बोसा दिया तो पूछने वालों ने पूछा, ये कौन है? अब बताता तो रहता कुछ नहीं, बादशाह है। कहता मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, ये तो हमारा मुआशरती हिस्सा है। जब किसी की इज्जत की बात हो रही हो तो नहीं, मैं नहीं जानता। जानते होते हुए भी कहा मैं नहीं जानता। तो साथ खड़ा था अहले बैत के मानने वाला शायर फरसदक। उसने कहा कि तू नहीं जानता तो मैं बताता हूं कि ये किस शान का मालिक है। तो जो फरमाई तो रवायात में किताबें उठा के देखिए, फरसदक का पूरा कसीदा लिखा हुआ है जो उसने वहीं पे खड़े होके इमाम की शान में बयान किया। और जब कसीदा बयान किया तो बादशाह था, फरसदक को कैद कर लिया। जब कैद कर लिया तो मौला को पता चला
मौला ने उसके लिए कुछ पैसे, कुछ चीजें उसके लिए भेजी। तवज्जो फरमाइएगा, जब भेजी तो जब लेके जाने वाला लेके पहुंचा उधर, तो कहा ये तेरे इमाम ने भेजा है। वो देख के कहता है ये जाके इमाम को वापस करना और कहना मौला मैंने आपकी शान पैसों के लिए बयान नहीं की। अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने मैंने आपकी शान तोहफे तहाज के लिए बयान नहीं की। लेकर आगे भी वो करीम था जो किसी का हक रखता ही नहीं। सुभान अल्लाह। कहा वापस लेके जाओ और फर्जदा को कहो तूने हमारी शान अल्लाह की रजा के लिए बयान की है, लेकिन याद रख हम ये अहले बैत जो देते हैं वो लेते नहीं, जो देते हैं वो लेते नहीं। तू रख, और मैं सज्जाद तुझसे वादा कर रहा हूं तू ये भी रख ले, और तूने जो हमारी शान बयान की है कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह के यहाँ जो तेरा अजर है वो भी अभी बाकी है। अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाई आपने। और मेरे अजीजों, ये मेरा मौला जब कैद होके पहुंचा ना शाम में, बस आपका मजाक बदल गया तो मैं बात और करना चाहता हूं, थोड़ी तवज्जो फरमाइएगा। शाम में मेरे मौला पहुंचे तो मौला को मजीद दुख और तकलीफ देने के लिए दमिश्क की जामिया मस्जिद में बुलाया गया। जंजीर तौक पहने हुए पहली सफू में बिठाया गया। जब बिठाया और खतीब को कहा तू फजाइल बयान कर हमारे और अहले बैत की तनकीस का। वो खड़ा हुआ और खड़ा होकर जो खुशामद में कह सकता था उसने कहा। जब वो कह चुका तो बात आपकी 1000 दफा सुनी हुई। मौला यजीद की तरफ देख के कहते हैं क्या मुझे भी इजाजत देता है कि मैं भी इन लकड़ियों पे खड़ा होके कुछ कहूं। तो मौला ने बता दिया कि अगर ये जगह हमारे फजाइल बयान करे तो मिंबर है, अगर हमारे खिलाफ बोले तो ये मिंबर नहीं सिर्फ लकड़ियां हैं। और लड़का मुझे इजाजत देता है। अब जानता था गो कड़ियों में है, अगर ये कैदी बोला तो फिर और कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। नहीं, आपने लुत्फ नहीं लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इमाम कैद में भी हो तो दुश्मन पे उतना ही गालिब होता है जितना कैद के बगैर हो। इमाम की हैबत उतनी ही होती है जितनी के कैद के बगैर हो। कहते हैं लोग कहते हैं इजाजत दो, अपने साथ वालों को कहता है आप उठा के देख लीजिए किताबें। साथ वाले कहते हैं इजाजत दे, कहते हैं तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। ये वो खानदान है जिनको फसाखत तो बलागत गुट्टी में दी जाती है। लोगों मशवरों को हुआ किया, कहा भाई इजाजत दे। मजबूर हुआ मौला मिंबर पे आए। मौला खड़े हुए और मौला ने खड़े होके खुतबा पढ़ना शुरू किया। अल्लाह की हम्दो सना बयान की और बयान करने के बाद मौला देख के कहते हैं सुनो, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता उसे मैं बता रहा हूं कि मैं अली का फर्जंद हूं।
बुरा भला कहा जाता था, और उन लोगों के सामने नाम लिया जो लोग बुरा भला कहते थे। आज मुझे पहचानता है, देखो मैं अली का फरजांद हूं, मैं ज़हरा का फरजांद हूं, मैं खदीजतुल कुबरा का फरजांद हूं। जो नहीं पहचानता सुनाओ मेरा तारफ, अनबनो मक्का से वल मिना, मैं मक्का और मिना का बेटा हूं। अनबनो ज़मज़मा से वसिफा, मैं ज़मज़म और सिफा का बेटा हूं। जब मौला ने ये बातें की, खुतबा बहुत लंबा, जब बातें की तो अब लोगों पे जब हकीकत आश्कार हुई तो लोग बातें करने लगे। फौरन कहता है यजीद मुअज्जिन को अजान दे। जब मुअज्जिन ने अजान देना शुरू की, इमाम रुके। जब मुअज्जिन पहुंचा ना मोहम्मद और रसूलुल्लाह पे, इमाम मुअज्जिन को कहते हैं रुक। मुअज्जिन रुका, यजीद की तरफ देख के कहते हैं मौला बता, ये मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा नाना है? बता, ये मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा नाना है? का मतलब क्या हुआ? जो यजीद के सामने अपनी हकानियत बनवा के आए उसे सज्जाद कहते हैं। और मेरे अजीजों, जब ये लुटा हुआ काफिला कूफा में पहुंचा है ना, तो एक बहुत बड़े सहाबी, नाम आप जानते हैं इब्राहिम बिन तला, जो अशरा मुबशरा में भी मौजूद, इमाम सज्जाद को कैद में कड़ियों में देख के पास आया और पास आके कहता है, सज्जाद, अली इब्न हुसैन, बता जीता कौन और हारा कौन? बाप जमल में मारा गया था, तकलीफ तो दिल में थी, और कहता है अभी मौका अच्छा है, कैद में है, शहादतें भी हो गई, जो लूटना था हमने लूट भी लिया, अब मैं पूछता हूं जीता कौन और हारा कौन? कहता है अली इब्न हुसैन, बताओ जीता कौन और हारा कौन? मेरे मौला देख कहते हैं थोड़ा इंतजार कर, अभी अजान होने दे। अगर तो अजान में तेरे बाप का नाम आए तो समझे तुम जीत गए, अगर मेरे नाना का नाम आए तो समझ हम जीत गए। और ये अजमत है मेरे मौला की, ये अदब है। वायाद आप सुनते रहते हैं। मेरे मौला से पूछा, माँ के साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना क्यों नहीं खाते? हालांकि सगी माँ नहीं। मौला कहते हैं इसलिए कि मैं इस बात से डरता हूं कि जो दस्तरखान से चीज मैं उठाऊं, हो सकता है वो मेरी मां उठाने वाली हो, और मैं सज्जाद बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी मां वाली चीज सज्जाद उठा। मेरे जीजों, इबादत का क्या आलम है? बातें आपकी सुनी हुई। शैतान ने अंबिया का इम्तिहान लिया, लेकिन एक दफा मेरे मौला की बारगाह में आया। जब मौला की बारगाह में आया, मेरे मौला मुसल्ले पे हैं, इबादत पे। रवायत कहती है इज़्दहा की शक्ल इख्तियार की, आंखें आग वाली आंखें बनाई, 5, 7, 10 मुंह वाला इज़्दहा बना और इमाम के सामने आया। लेकिन इमाम की इबादत में फर्क ही नहीं आया। जब फर्क नहीं आया तो थोड़ा सा और आगे गया। आगे जाके रवायत कहती है इमाम के पांव के अंगूठे को अपने दांतों में लिया। जब दांतों में लिया
تو پھر بھی امام نے اپنی عبادت اور خشوع و خضوع میں رائی کے برابر بھی فرق نہیں آنے دیا. اور جب سارا زور لگا چکا, جب ایک دفعہ پیچھے ہٹا تو شیطان بھی کہتا ہے انت زین العابدین, آپ زین العابدین ہو. تو میرے عزیزو, ایک دفعہ میرے مولا کا بیٹا کنویں میں گرا, مولا نماز پڑھ رہے ہیں, اور جب نماز پڑھ رہے ہیں تو بچے کی ماں نے کافی شور کیا کہ بیٹا کنویں میں گر گیا, لیکن امام کے خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں آیا. جب نماز ختم کی تو پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کو آواز سنائی نہیں دی؟ مولا کہتے ہیں نہیں, اس لیے کہ جب سجاد اس کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو پھر دنیا کی آوازیں, مولا ہے کنویں کے پاس, کنویں کے پاس آ کے کہتے ہیں کنویں کو میری امانت سجاد کو واپس کر. روایت کہتی ہے پانی اوپر آیا, میرے مولا نے اپنے بیٹے کو اٹھا. اتنا خشوع و خضوع. روایتیں اٹھا کے دیکھو, میرا مولا قید ہو کے بازاروں میں بھی عبادت خدا اسی طرح بجا لاتا رہا. روایات کیا کہتی ہیں؟ کربلا کے بعد میرا مولا عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار رہا. اب سنتے رہتے ہیں, میرا مولا بازار میں جاتا ہے تو روتا ہے, میرا مولا کسی جوان کو دیکھتا ہے تو روتا ہے, اور جب کبھی کسی قصاب کو دیکھتے نا جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے تو مولا روک کے پوچھتے اسے پانی پلایا ہے؟ اور جب کہتا نا مولا پانی پلایا ہے تو منہ پھر جاتا کربلا کی طرف, رو کے کہتے مولا بابا لوگ تو جانوروں کو پیاسا ذبح نہیں کرتے. ادرکم اللہ. عزاداروں, رونے والوں, بہت دفعہ آپ کی روایت سنی ہوئی, منہال ہے مولا کا صحابی, کیا تھا مولا کم رویا کریں, اپنا نہیں تو کچھ ہمارا ہی خیال کریں, آپ ہمارے امام ہیں. اور مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں, شہادت تو آپ کی میراث ہے. مولا کہتے ہیں منہال تو نے انصاف نہیں کیا, شہادت تو ہماری میراث ہے, کیا میری ماؤں بہنوں کا قید ہو کے بازاروں میں جانا یہ بھی ہماری میراث ہے. عزاداروں, رونے والوں, روایت کے لفظ ہیں, مولا بازار میں نکلے کسی کام سے, ایک مسافر ہے جو بازار میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے انا مسکین ارحمونی, میں مسافر ہوں میری مدد کرو. بار بار یہ جملہ کہہ رہا. جب بار بار کہا نا میرے چوتھے امام کا گزر ہوا, میرے امام نے یقیناً اس کی خدمت کی ہوگی, خدمت کر کے پوچھا تو مسافر ہے لیکن مجھے اتنا بتا, اگر تجھے عالم مسافرت میں موت آ جائے تجھے امید ہے تجھے غسل ملے گا, تجھے امید ہے تجھے کفن ملے گا, تجھے امید ہے تجھے دفن کیا جائے گا؟ کہتا ہے مولا ہاں, مجھے آپ کے نانا کی امت پہ یقین ہے, میں اگر عالم مسافرت میں مارا جاؤں
मुझे कफन भी दिया जाएगा, मुझे गुस्ल भी दिया जाएगा, मुझे दफन भी किया जाएगा। जब ये सुना ना तो मेरा मौला का मुंह फिर गया करबला की तरफ, रो के कहते बाबा लोग मुसाफिरों को बेकफन दफन नहीं करते। हाय बाबा तेरी अपनी किस्मत, तुझे बेकफन दफन किया गया। अज़ादारों रोने वालों, ये मेरा वो मजलूम इमाम जो शामे गरीबा को उठ के चल भी नहीं सकता। आप सुनते रहते हैं, रवायात में लिखा है, रावी कहता है मैंने देखा कि एक बीबी एक जलते हुए खैमे से जलते हुए खैमे में जाती है, बाहर निकलती है, जाती है, बाहर निकलती है। रावी कहता मैंने सोचा इस बीबी की कोई कीमती चीज अंदर रह गई है, कभी अंदर जाती है कभी बाहर आती है। रावी कहता मैंने क्या देखा, एक दफा जब बीबी गई तो खाली थी, जब बाहर आई तो सज्जाद को उठाया हुआ था। अल्लाह, इमाम सज्जाद को उठाया हुआ था, उठा के बाहर लेके आई। ये मेरा वो मजलूम इमाम जो बीमार नहीं, बीमार कर गया इसको जनाब ज़ैनब का पर्दा, बीमार कर गए मेरे इमाम को जनाब सकीना के तमाचे, बीमार कर गया मेरे मौला को अपनी माँ बहनों का कैद होके शाम जाना। अज़ादारों रोने वालों, ये मेरा वो मजलूम इमाम एक मंजिल पे जाके मेरे मौला ने पांव फैला के बैठे। जब पांव फैला के बैठे हैं ना तो जनाब सकीना चलती हुई पास आई। जनाब सकीना पास आके कहते हैं भैया पांव फैला के क्यों बैठे हो। मेरा चौथा इमाम रो के कहते हैं सकीना एक तो ये बात है जंजीरों की वजह से मेरी जिल्द पे छाले बन गए हैं, दूसरी बात ये है कि मेरे पांव में कांटे लगे हुए, मैं सही चल भी नहीं सकता। अज़ादारों रोने वालों, एक मंजिल पे जब सकीना की थोड़ी देर के लिए रस्सियां खोली गई ना, जनाब सकीना चलती हुई मेरे चौथे इमाम के पास आई, भैया के पांव से कांटे निकालना शुरू किए। मैं रो के कहूंगा सकीना आपने भैया के पांव से तो कांटे निकाले, मुझे बताओ तुम्हारे पांव से कांटे किसने निकाले थे। अज़ादारों रोने वालों, पहले भी आपने रवायत सुनी, शहरे हिमस के बाहर काफिले को रोका गया। क्यों रोका गया? कहा इसलिए कि अभी शहर सज रहा है, अभी बाजार सजाए जा रहे हैं, बाजार सज ले फिर अहले बैत के काफिले को लेके जाया जाएगा। अज़ादारों रोने वालों, रवायात कहती हैं शहर के बाहर इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी तेज धूप थी, कोई साया भी नहीं था, और इतनी तेज गर्मी में धूप में मेरे मौला के जंजीर गर्म हुए। जब जंजीर गर्म हुए, जंजीर की गर्मियों की वजह से मेरे मौला की जिल्द पे छाले बनना शुरू हुए। जब छाले बने, मेरा मौला चल के एक जगह पे बैठा। अब इतनी शदीद गर्मी में जनाब सकीना इमाम सज्जाद के पास आके कहती है भैया 2 घूंट पानी मिल सकता है, 2 घूंट पानी मिल सकता है। मेरे मौला देख के कहते हैं बहन ज़ैनब, बहन सकीना, पता नहीं पानी कैसे मिलेगा, इतनी देर में क्या देखा, फौजे अश्किया का जालिम है, कंधे पे मश्क डाली हुई है, अपनी फौज को पानी पिलाने के लिए निकला। जनाब सकीना ने जब देखा ना, जनाब सकीना उसकी तरफ बढ़ी। जनाब सकीना देख के कहती है जालिम हो सकता है मुझे 2 घूंट पानी दे दे, 2 घूंट पानी मिल सकते हैं। जालिम ने पानी नहीं दिया, अपनी फौज के फौजियों को पानी पिलाना शुरू किया। पानी पिला पिला के जनाब सकीना ने सोचा हो सकता है फौजियों को पिलाने के बाद मुझे दे। वो जालिम ने पानी नहीं दिया,
फौजियों को पानी पिलाने के बाद अपनी फौज के जानवरों को पानी पिलाना शुरू किया। जिधर जिधर पानी वाला जाता है सकीना साथ साथ जाती है। अज़ादारों रोने वालों पानी फिर बढ़ा। जब पानी बढ़ गया ना, जनाबे सकीना ने सोचा अब पानी दे देगा। जब अब सोचा, जालिम ने पानी दिया नहीं, अपनी फौज के जानवरों के सुमू पे पानी डालना शुरू किया। जब सुमू पे पानी डाला, पानी फिर बढ़ा। अब उसने मश्क का मुंह किया गरम रेत की तरह। मश्क को पानी पानी गरम रेत पे गिराना शुरू किया। जनाबे सकीना ने गिरे हुए पानी पे अपना रुखसार रखा। रुखसार का रखना था। जालिम आगे बढ़ा, कुछ ऐसा जुल्म किया। सकीना रोज कहती है जालिम वो पानी भी नहीं देता, जुल्म भी करता है। अज़ादारों रोने वालों, बस आखिरी जुमला सुनो, आपकी ज़हमत को तमाम करूं। अज़ादारों रोने वालों, ये मेरा वो मजलूम इमाम जब वापस आया है ना मदीने में, तो मेरे मौला को जहर दी गई। रिवायात क्या कहती है, जहर इतना शदीद था, जहर की वजह से मेरे मौला के हाथों की तलियां भी फट गई। इतना शदीद जहर था। अज़ादारों रोने वालों, मेरे मौला के जिगर के टुकड़े बाहर आने लगे। जब बाहर आने लगे ना, तो मेरे मौला ने रोना शुरू किया और कहा हाय गरीबी। इमाम मोहम्मद पाकर देख के तो बाबा गरीबी के होके क्यों ले रहे हो? कहा इसलिए ले रहा हूं, शाम के बाग में मेरे शाम के साथ सफर करने वाली माँ फिजा, उसका आखिरी वक्त है। रो रो के कह रही है सज्जाद मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरा गुस्ल कौन करेगा, मेरा कफन कौन करेगा? अज़ादारों रोने वालों, इसने इमामत से इमाम मोहम्मद पाकर जनाबे फिजा के पास पहुंचे। जब पास पहुंचे ना, जनाबे फिजा बेटे कहती है बेटा बाकर सज्जाद क्यों नहीं आया, सज्जाद क्यों नहीं आया? इमाम रो के कहते हैं दादी अम्मा मेरा पापा आने के काबिल नहीं, इसलिए कि उसके जिगर के टुकड़े बाकर आ गए थे, उसे जहर दी गई है। जनाबे फिजा कहती है बेटा बाकर तू इमाम है, इतने इमामत से मेरी जिंदगी लंबी कर, मैं तेरे बाबा के जिगर के टुकड़े अपने हाथों पे लेना चाहती हूँ। अज़ादारों बस आखिरी जुमला। अज़ादारों रोने वालों, कुछ गुस्ल देने वालों को गुस्ल देते वक्त गुस्ल देने वाला रोया है, गुस्ल देने वाला रोया है। एक मेरे सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को गुस्ल देने वाला रोया। जनाबे सैयदा को गुस्ल देने वाला मेरा मौला अली रोया। और मेरे चौथे इमाम को गुस्ल देने वाला मेरा मौला रोया। पूछा मौला क्यों रोते हो? कहा इसलिए कि अभी भी मेरे बाबा की पुष्ट पे ताज़ियातों के निशान है, जंजीरों के निशान है। लेकिन मेरे मौला को गुस्ल भी दिया गया, कफन भी दिया गया। मैं कहूंगा मौला वो आप बीमार थे, लेकिन आपको गुस्ल भी दिया गया, कफन भी दिया गया, आपका ताबूत भी उठाया गया, ताबूत उठाने वाले भी मौजूद थे। लेकिन आइए करबला 3 दिन का प्यासा, ना कफन मौजूद है, ना कोई दफन करने वाला मौजूद है। मौला आज हम आपका ताबूत उठाएंगे, लेकिन करबला में जंजीर से पूछो रुदाद सफर पाँव की, जंजीर से पूछो आबिद से न पूछो, आबिद से न पूछो, फलक पीर से पूछो।
रुदा दे सफर पाँव की जंजीर से पूछो वो खुद न बताए वो खुद न बताए गुले गुलगीर से पूछो रुदा दे सफर